whole chapter we will cover in the upcoming lecture, the whole course. Planning is about defining goals, establishing strategies to achieve those goals, and developing plans to integrate and coordinate activities. Organizing, arranging, and structuring work to accomplish organizational goals. And just like we will have to arrange material resources and resources and material resources, all these things to accomplish and our defined plan and goals. Then there is a person leading, working with and through people to accomplish goals. There is a person who prescribe other people. He can be a manager, he can be a policy maker, and anyone. And then controlling function involves the benchmarking of the organizational functions. So what the next slide is going to tell us is about plan. This is these are the managerial roles. What a manager's basic role is, and this is divided into three heads. First one is interpersonal role, the second one is informational, then the decisional role. Interpersonal role is about the interpersonal, means the role a manager plays while he is while he is working with the other people. Just like interpersonal roles include the figurehead, leader, and the liaison. Who is the figurehead? The person who is the who represents his organization, who displays or displays his role as a figure for the organization. He is at the front line and represent organization from all its point of views. Then he shows the functions of the leader and then the liaison. Leader is the person who directs other people to accomplish some organizational goals, and who is the liaison? Liaison is the person who maintains the connection between the suppliers and customers. He is the liaison. He maintains his contacts. So it is the then informational role is about monitor, disseminator and spokesperson. एक मैनेजर जो है वो डिफरेंट तरह के टास्क को मॉनिटर करता है. डिसिमिनेटर जो इंफॉर्मेशन को आउटसाइड स्टेक होल्डर्स को के सामने डिसिमिनेट करता है. जैसे ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी इंफॉर्मेशन है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के तहत आपको दूसरे लोगों को बतानी है, इज ए डिसिमिनेटर. जैसे लाइक फिरदौस ससी के वान को आप जानते हो कि जैसे वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की डिसिमिनेटर है. देन स्पोक्स पर्सन, आप एक स्पोक पर्सन के हिसाब से भी एक मैनेजर होता है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर एक का टास्क है कि वो एज ए स्पोक्स पर्सन पूरे जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को, ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स की पॉलिसीज़, कोई भी डिसीजन जो है वो उनको कन्वे करता है. ये उसका जो रोल है वो एक स्पोक्स पर्सन का है. तो इंफॉर्मेशनल रोल्स में मॉनिटर कि वो इंफॉर्मेशन को, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन है उसको मॉनिटर करता है, डिसिमिनेट करता है, स्पोक्स पर्सन है. देन डिसीजनल रोल्स इज़ अबाउट डिस्टर्बेंस हैंडलर. एक मैनेजर का ये रोल है कि वो एक डिस्टर्बेंस को हैंडल करता है. किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उसको वो हैंडल करता है. रिसोर्स एलोकेटर, मैक्सिमम एफिशिएंट रिसोर्सेज, एफिशिएंट मींस कि लो कॉस्ट रिसोर्सेज को वो जनरेट करता है. और निगोशिएटर वो ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर्स के साथ निगोशिएट करता है. दैट मे बी रिलेटेड टू प्राइसेस, दैट मे बी रिलेटेड टू क्वालिटी एंड ऑल अदर थिंग्स, टू दैट मे बी डिपेंडेंट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज. उन सबको इंश्योर करता है. तो दीज आर द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजेरियल रोल्स बाय द मिंट्सबर्ग. और जब भी मैं ये आपसे पूछूंगी, दीज आर द 9 or to 10 roles. The next slide is about the who is manager actually do.
what an manager actually do, the interaction with the others, with the organization, with the external context of the organization. वो interact करता है लोगों के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे मेंबर्स के साथ, और फिर एक्सटर्नल कॉन्टेक्ट्स को जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको मेंटेन करता है। जैसे लाइक सप्लायर्स हो गए आपके, और आपके कस्टमर्स हो गए, और बाकी सारे रिफ्लेक्शन। वो क्या करता है कि वो थॉटफुल थिंकिंग, मतलब कि ऐसी थिंकिंग जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रूटफुल है, वो इस तरह की उसकी थिंकिंग होती है। एंड देन एक्शन, वो प्रैक्टिकल डूइंग, कोई भी काम है वो प्रैक्टिकली उसको वो करता है। ये आपके जो मिन्सबर्ग के मैनेजरियल रोल्स हैं। अबाउट 10 to 12 ये रोल्स बनते हैं, और वन एवर आई विल आस्क यू फ्रॉम about the managerial roles, you will have to reproduce if they are asked in the are there in the in any quiz or in any assignment or in a midterm examination. Really do in the organization while they work in the organizations. Today we will continue with the skills approach. What sort of skills managers need? And these are the technical skills, human skills, and the conceptual skills. टेक्निकल स्किल्स आपको मैं ये बताती चलूँ कि टेक्निकल स्किल्स जो हैं वो लेबर के लिए ज़रूरी होती हैं या इंजीनियर्स के लिए। जो टेक्निकल पर्सनस हैं उनके लिए टेक्निकल स्किल्स का होना, जिन्होंने काम उस तरह का परफॉर्म करना है, उनके लिए टेक्निकल स्किल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके काम के लिए। ह्यूमन स्किल्स एज सच कि दीज स्किल्स मस्ट बी इन एवरी पर्सन, आइदर ही इज़ एन इंजीनियर, लेबर और मैनेजर, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ दी मैनेजर्स। ये मैनेजर्स को दूसरे लेबर से, एम्प्लॉय से काम लेना है। तो ह्यूमन स्किल्स का होना, टू डील विद द ह्यूमन साइकी, ह्यूमन से काम लेना मैनेजर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। और हम मैनेजर्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं कि व्हाट मैनेजर्स डू, दे हैव ह्यूमन स्किल्स, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देन देयर इज़ द कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। एक आपका मिडल लेवल, और आपने पढ़ा है यहाँ पे मिडल लेवल और ये टॉप लेवल मैनेजर, मिडल लेवल मैनेजर, लाइन मैनेजर एंड नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़। आप ये समझ लो कि जो सबसे लोअर है ना, नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ के लिए टेक्निकल स्किल्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन फर्स्ट लाइन मैनेजर्स और मिडल लाइन मैनेजर्स के लिए ह्यूमन स्किल्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी मूव टूवर्ड्स, इफ़ वी टॉक अबाउट टॉप मैनेजर्स, they need all skills. They must have knowledge about the technical skills. They must have knowledge about the human skills, human skills, and then they must have conceptual skills as well. तो top managers के लिए conceptual skills का होना that is मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उन्होंने पॉलिसी मेकिंग करनी है और ह्यूमंस को लेके चलना है, सारे ह्यूमंस को और लेबर को लेके चलना है, लेबर से काम कराना है और एम्प्लॉयज़ को खुश रखना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको परफॉर्म करना है और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स इस्टेब्लिश करने हैं और उनको अचीव करने के लिए एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है। सो जो ह्यूमन स्किल्स आर मोर, आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ह्यूमन स्किल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट एट 2 मैनेजरियल लेवल्स, मिडल लाइन मैनेजर्स एंड टॉप लाइन मैनेजर्स। उनके लिए ह्यूमन स्किल्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल स्किल्स की नो हाउ होना मिडल लेवल मैनेजर्स और टॉप लेवल मैनेजर्स के लिए ज़रूरी है, बट उससे रिलेटेड उनका एक्सपर्ट होना दैट इज़ नॉट नेसेसरी, नहीं है उनके लिए इतना इम्पॉर्टेंट, आप समझ लें कि उनको ज़रूरी नहीं। बट कॉन्सेप्चुअल स्किल्स का होना लीडर्स के लिए, जो टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके लिए कॉन्सेप्चुअल स्किल्स का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स एंड कॉन्सेप्चुअल स्किल्स का जो क्वेश्चन मैं ज़्यादातर पूछती होती हूँ अपनी क्लास से, तो वो मैं ये अक्सर पूछती हूँ कि व्हाट सॉर्ट ऑफ स्किल्स डिफरेंट मैनेजरियल लेवल्स नीड टू परफॉर्म देयर फंक्शंस।
कौन कौन सी स्किल्स कौन कौन से मैनेजरियल लेवल पर रिक्वायर्ड हैं या ज़रूरी होती हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये स्लाइड जो है स्किल नीडेड एट डिफरेंट लेवल्स, ये चीज़ को बयान कर रही है। टॉप लेवल मैनेजर्स के लिए कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, देन मिडिल लेवल मैनेजर्स के लिए ह्यूमन स्किल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन लो लेवल मैनेजर्स के लिए टेक्निकल स्किल्स की नो हाउ ज़रूरी है, बट टेक्निकल एक्सपर्ट होना नॉट इम्पॉर्टेंट, बट नो हाउ होना, क्योंकि दे हैव टू टेक वर्क आउट ऑफ द लेबर एंड पर्सन हु इज़ टेक्निकली परफॉर्मिंग द जॉब। तो उनका नो हाउ होना ज़रूरी है टू टेक एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव वर्क आउट ऑफ दैम। आपको एक बात और इस चीज़ में मैं एक बताती चलूँ कि जो ये वाली जो बुक है आपकी, ये भी एक आपकी इंट्रोडक्टरी लेवल की बुक है। इंट्रोडक्टरी लेवल में आपका ये देखा जाता है कि आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। अभी आपकी जनरेशन्स की तरफ हम लोग नहीं गए कि अब की जनरेशन की क्या बात हो रही है, अभी की क्या बातें चल रही हैं ऑर्गेनाइजेशन स्टडीज़ के अंदर, क्योंकि अभी हम लोग ज़ाहिर है कि एक बेस बनाएंगे और इससे रिलेटेड जितना भी नॉलेज है अभी तक का जिस भी फॉर्म में है उसको हम स्टडी करेंगे। और जैसा कि कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स का होना हर एक के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब और कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं कि जैसे ऊपर कॉन्सेप्चुअल स्किल्स की बात हुई है, यूजिंग इंफॉर्मेशन टू सॉल्व बिज़नेस प्रॉब्लम्स या बड़े लेवल की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपकी कॉन्सेप्चुअल स्किल्स होना ज़रूरी है। और आइडेंटिफाई ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इनोवेशन, कि अपने बिजनेस के अंदर इनोवेशन लेके आनी है, उसके लिए आपकी कॉन्सेप्चुअल स्किल्स आर रिक्वायर्ड। देन देयर आर एरियाज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग सोल्यूशंस, अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद अपने एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना है कि जहाँ से उनका सोल्यूशन हमें मिल सकता है। दैन सेलेक्टिंग क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैसेज ऑफ डाटा, आपको क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्रिटिकल होते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड देन आपने टेक्नोलॉजी कैसे करनी है उसकी अंडरस्टैंडिंग, और ये दीज आर ऑल दीज थिंग दैट आर इम्पॉर्टेंट एट द टॉप लेवल मैनेजमेंट फॉर द टॉप लेवल मैनेजर्स एंड और बिज़नेस को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली एक इन्वायरमेंट के अंदर काम करवाने के लिए दी कॉन्सेप्चुअल स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट। देन कम्युनिकेशन स्किल्स टॉप लेवल मैनेजर के लिए भी ज़रूरी हैं और मिडिल लेवल मैनेजर्स के लिए भी, क्योंकि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं दैट आर अबाउट एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म आइडियाज़ इनटू वर्ड्स एंड एक्शंस। हैं क्या चीज़, एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म आइडियाज़, जैसे कि अगर आपकी टॉप लेवल मैनेजर के पास कोई कॉन्सेप्चुअल स्किल है, उसने कोई कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, उसको उसने ट्रांसफॉर्म करना है, आपको कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होगी, आपको पता होगा कि ये कैसे ऑपरेशनलाइज होगा, देन यू विल टॉक अबाउट विद इट मिडिल लेवल मैनेजर्स एंड दे कुड इफेक्टिवली एंड दे कुड कन्वे दैट टू लेबर एंड अदर पीपल। देन क्रेडिबिलिटी अमंग कोलीग्स, peers and subordinate, listening and asking questions, presentation skills, they must have good presentation skills, and then analytical skills and written or graphic formats they must have. Then there are effectiveness skills, contributing to corporate mission and departmental objective. तो effectiveness skills जो हैं आपको कंसेप्चुअल टॉप लेवल पर ही रिक्वायर्ड हैं। इफ़ेक्टिवनेस का आपको मैंने बताया था कि इफ़ेक्टिवनेस का जो रिलेशन है दैट इज़ मोर विद द क्वालिटी आउटपुट। आपके जब क्वालिटी आउटपुट या आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अटेन करना है, दैट आर इफ़ेक्टिवनेस स्किल्स। देन दे हैव आपने देखा होगा कि जो मल्टीनेशनल्स हैं, जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर मोर कस्टमर फोकस्ड, वो कस्टमर के ऊपर फोकस करती हैं, दैट इज़ ड्यू टू देयर इफ़ेक्टिवनेस स्किल्स ऑफ द मैनेजर्स। मल्टीटास्किंग, वर्किंग एट मल्टीपल टास्क इन पैरेलल, आप डिफरेंट तरह के टास्क हैं, क्योंकि एक जो मैनेजर है दे आर नॉट डीलिंग जस्ट विद वन फंक्शन, they are dealing with multiple tasks, they have to perform, just like human skills, they are dealing with the humans, they have to make policies, they have to see the environmental factors present and political factors and so many other factors, and then they must have negotiating skills, then project management skills, reviewing operations and implementing improvements। किसी भी किस्म की improvements आपको organization के अंदर required हैं तो वो effectiveness skill से रिलेटेड होंगी। देन
आप ये इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। दे मस्ट हैव गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल, सेटिंग प्रायोरिटी फॉर अटेंशन एंड एक्टिविटी एंड सेटिंग मेंटेनिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनली एंड एक्सटर्नली। और ये इंटरपर्सनल स्किल्स का मतलब है कि आपकी पर्सन टू पर्सन आपकी इंटरपर्सनल आप दूसरे लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हो। कोचिंग एंड मेंटोरिंग स्किल, आप किस तरह से कोच करते हो, लीड करते हो। डाइवर्सिटी, आप स्किल्स वर्किंग विद डाइवर्स पीपल एंड कल्चर, जैसे डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट रिलीजन के लोग होते हैं एक जगह पे काम करते हैं, फिर डिफरेंट इलाकों से आने वाले लोग होते हैं, तो वो एक डाइवर्सिटी पाई जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो हाउ दे आर गोइंग टू हैंडल दीज डाइवर्सिटी स्किल्स देन नेटवर्किंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। आपको जैसे मैनेजर के बारे में हमने बात की थी कि उनके जो रोल्स में हमने बात की थी कि उनको एक फिगर हेड भी अपने आप को शो करना होता है। दे हैव टू मेंटेन एज ए देयर लाइजन रोल एज वेल, जिसमें लाइजन में आपको अपने जो सप्लायर्स हैं उनके साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करना है, उनके साथ नेटवर्किंग बिल्डअप करनी है। और नेटवर्किंग आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ये वही बात होगी, वर्किंग इन टीम्स, कॉपरेशन एंड कमिटमेंट। ये आपकी जो है, आप इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा फंक्शन मैट्रिक्स के हिसाब से। एंड हाउ मैनेजर जॉब इज़ चेंजिंग, ये भी सारा आपको पता है कि द एनवायरनमेंट इज़ चेंजिंग ऑल अराउंड। अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करते हैं, तो अगर आपने रिसेंट मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के बारे में आपको पता होगा कि जैसे सबके नॉलेज में है कि वारिद वॉज एक्वायर्ड बाय जैज़। तो ये एक रीसेंट जो थी, आप समझ लो कि आपको ये हर एक को पता है इस चीज़ का। तो आपको ये इन्वायरमेंट उनकी चेंज हो रही है, हर रोज़ चेंज होती है। अब जैसे पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के इंटरनल फैक्टर्स होते हैं कुछ के, जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करने पे मजबूर कर देते हैं। देन दे आर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, फिर आपके नॉलेज मैनेजमेंट के फैक्टर्स हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशंस को, या इनोवेटिव प्रोडक्ट की आपके मार्केट के अंदर डिमांड आ रही है, आपकी जो प्रोडक्ट है वो अभी से ऑब्सोलीट होना शुरू हो गई है, आपको इनोवेशन चाहिए। तो हर वक्त की जो है ये ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड होती है कि वो रिक्वायरमेंट ये होती है कि वो हर वक्त चेंजिंग पोजीशन में रहते हैं, और चेंज जो है वो कॉन्टीन्यूस है। तो अब ये चीज़ों को आप जब रेलेवेंट विद दी चेंज, तो अब ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप इन चीज़ों को जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की बात यहाँ पे इस स्लाइड में की गई है, और इंक्रीज सिक्योरिटी थ्रेट्स की बात की गई है, रिस्क मैनेजमेंट फैक्टर्स हैं, फिर इंक्रीज एम्फेसिस ऑन ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजरियल एथिक्स की बात इसमें की गई है, और आगे सारे पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं। और इंक्रीज कम्पैटिटिवनेस, और कि आपको कम्पैटिटिव भी बनना है। इसके इन स्लाइड्स के बारे में, इन पॉइंट्स के बारे में मैं आने वाले लेक्चर्स में बहुत अच्छे डिटेल के साथ डिस्कस करूँगी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग देखते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को एज ए होल एज वेल एज इन दी इन्वायरमेंट। तो हम आने वाले लेक्चर्स में इससे बात करेंगे। व्हाट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन? एन ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन कैसे की जाती है? ए डेलिब्रेट अरेंजमेंट ऑफ पीपल टू अकम्प्लिश सम स्पेसिफिक पर्पस दैट इंडिविजुअल्स इंडिपेंडेंटली कुड नॉट अकम्प्लिश अलोन, कि एक बंदा जो है वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन होगी, जो गोल होगा वो ऑर्गेनाइजेशन वाइड होगा। कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं कि वो उनका, ये स्लाइड याद कर लीजिएगा कि डिस्टिंक्ट पर्पस, एक पर्पस होता है, उस पर्पस के लिए ऑर्गेनाइजेशंस बिल्ड की जाती हैं। फिर डेलिब्रेट स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर के अंदर होती हैं, और पीपल वहाँ पे काम करते हैं, डिफरेंट पीपल काम करते हैं। तो ये एक 3 करेक्टरिस्टिक्स हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस होती क्या हैं, डेलिब्रेट स्ट्रक्चर। लेकिन ये पुरानी डेफिनेशंस हैं, क्योंकि हम लोग अभी बेस बना रहे हैं। तो आपको ये नेक्स्ट स्लाइड जो है, ये अब ट्रेडिशनल और कंटेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशंस वो होती हैं जो कि लेटेस्ट हैं। अभी आप देखते हो कि ऑनलाइन प्रेजेंस होती है ऑर्गेनाइजेशंस की, और वो ऑनलाइन रूट कर रही हैं हर चीज़ को। देयर फिजिकल प्रेजेंस इज़ लेस दैन द ऑनलाइन प्रेजेंस एंड वर्चुअल प्रेजेंस। तो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन और कंटेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स के लेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कैसी हैं। तो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल होती हैं, इनफ्लेक्सिबल, जॉब फोकस होती हैं, वर्क इज़ डिफाइंड बाय द जॉब पोजीशंस, इंडिविजुअल ओरिएंटेड होती हैं।
परमानेंट जॉब्स होती हैं उसमें, जैसे आप ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर देखते हो, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस देखते हो, वहाँ पर परमानेंट जॉब्स होती हैं, और दूसरी जगहों पे भी सब तरफ परमानेंट जॉब्स होती हैं। कमांड ओरिएंटेड होती है, मैनेजर्स ऑलवेज मेक डिसीजंस, और रूल ओरिएंटेड होती है, एक ऑनर होता है और बाकी सारे उसको फॉलो कर रहे होते हैं। रिलेटिव होमोजीनियस वर्कफोर्स होती है। वर्क डेज डिफाइंड होते हैं एज 9 to 5। हिरारिकल रिलेशनशिप्स होते हैं, और वर्क एट ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी ड्यूरिंग स्पेसिफिक आवर्स। तो ये उनकी यानी कि 9 to 5 की जॉब है। अगर जैसे 9 to 5 ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती है, तो ये ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ पॉइंट्स हैं। जबकि कॉन्टेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट्स जो हैं वो डायनामिक है, मूविंग है। डायनामिक मीन्स कि उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, उनको आपको उनके एक उनकी प्रेजेंस एक जगह पे नहीं नज़र आएगी, बल्कि एक डिफरेंट प्लेसेस पे नज़र आएगी। उनके छोटे छोटे ऑफिसेज होंगे, या आप समझ लो कि घर से बैठे बैठे आप एक ऑर्गेनाइजेशन को रूट कर रहे हो। तो डायनामिक मीन्स कि मूविंग, आप कहीं पर भी बैठ के ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को फुलफ़िल कर रहे हो। फ्लेक्सिबल, जिससे आप ये फ्लेक्सिबल है, मतलब कि आप दिल कर रहा है रात को काम करने को, आप रात को काम करोगे। आपका दिल कर रहा है सुबह काम करने को, आप सुबह काम करोगे। स्किल फोकस्ड होती है कि अब ज़ाहिर है कि अगर आप घर से ऑपरेट कर रहे हो और यू आर टेक्निकल और एक्सपर्टीज एंड यू आर एन इंजीनियर, तो आपकी स्किल के ऊपर सब कुछ फोकस होगा। वर्क इज़ डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ टास्क टू बी डन। टीम ओरिएंटेड होगी। कुछ बहुत सारी जो प्रोजेक्ट्स हैं और उनकी वर्चुअल प्रेजेंस होती है, और उनको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को असाइन कर दिया जाता है। जैसे आपने एक जगह का मैप बनाना है, और उनको आपकी जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आप ऑफिस में इन्हीं 9 to 5 वाली जॉब में जाएं, बल्कि आप घर में बैठ के जब मर्ज़ी आपको दिल कर रहा है रात को बैठ के काम करने को दिल कर रहा है, रात को बैठ करके प्रोजेक्ट को फुलफ़िल करके जब मर्ज़ी आप उनको भेज दें। टाइम लाइन आपने खुद ही से मीट कर लेनी। तो टेम्प्रेरी जॉब्स होती हैं, जब प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है आपकी जॉब भी उसमें फ़िनिश हो जाती है, और नया कॉन्ट्रैक्ट और नया बन जाता है। और इस तरह से इन्वॉल्वमेंट ओरिएंटेड होते हैं, लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, और वो आपको बता देते हैं, सजेस्ट कर देते हैं कि वट इज़ दी मोस्ट वट मस्ट बी दी मोस्ट प्रेफरेबल थिंग्स इन दिस रिगार्ड। वो आपको खुद ही से सजेस्ट कर देते हैं। जस्ट लाइक आप एक ऑर्गेनाइजेशन है और आप अपनी इसमें मार्केटिंग की कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ मार्केटिंग चीज़ों की करना चाह रहे हैं, तो आप अपनी मार्केटिंग फर्म बना लेते हैं, और मार्केटिंग फर्म से आप अपनी कम्युनिकेट करते हैं, और उनसे अपने उनके प्लान्स पूछ लेते हैं, क्या क्या अवेलेबिलिटी क्या क्या है, लोग किस किस तरह से अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं। टीवी एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं, पम्फलेट छपवाते हैं, या क्या क्या ऑप्शन हैं और क्या क्या उनके चार्जेस हैं। दीज आर ऑल दी यानी कि आप समझ लो कि जो है एम्प्लॉयज़ हैं वो आपको सारा ऑर्गेनाइजेशन को अपने बिहाफ पे या किसी भी बिहाफ पे आपको पूरी तरह से गाइड कर देते हैं। कस्टमर ओरिएंटेड होती है, कस्टमर टू कस्टमर वेरी करती है। डाइवर्स वर्कफोर्स होती है उनकी। वर्क डेज हैव नो टाइम बाउंड्रीज। लेटरल एंड नेटवर्क रिलेशनशिप्स होते हैं, और वर्क एनीवेयर एनी टाइम। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रेडिशनल एंड कंटेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं आपसे इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, तो देन आई विल आस्क अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल एंड द कंटेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशन, एंड यू विल हैव टू रिमाइंड दीज पॉइंट्स। एंड वाई स्टडी मैनेजमेंट, जो हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर्स में, कि ये यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट, ड्यू टू यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट वी ऑल नीड टू स्टडी मैनेजमेंट। आइदर वी आर अ डॉक्टर, अगर एक डॉक्टर को डॉक्टर एक इंडिविजुअल फोकस्ड उसका जो प्रोफेशन है, बट व्हेन ही इज़ गोइंग टू रन एक क्लिनिक, तो उसमें उनको उनकी एक वर्क टीम होगी, जिसमें उनके नर्सेस होंगी और उनके स्टाफ होगा पूरा, जिसको वो मैनेज करेंगे। तो वो वहाँ पर भी मैनेज करें। इंजीनियर्स को भी अपनी डिफरेंट टास्क के लिए एक टीम के साथ चलना पड़ता है, एक टीम को टास्क असाइन करना पड़ता है। इसी तरह से हम लोग अगर नेचर में देखते हैं, हर तरफ आपको मैनेजमेंट नज़र आती है, चीज़ें ऑर्डरली नज़र आती हैं, और उन चीज़ों को किया जाता है, मैनेज किया जाता है। तो रियलिटी ऑफ वर्क, एम्प्लॉयज़ इधर मैनेज और आर मैनेज, को उनको कहीं पे मैनेज किया जा रहा होता है, या वो कहीं किसी ना किसी से मैनेज हो रहे होते हैं। रिवॉर्ड एंड चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ मैनेजर, वो क्या हैं? मैनेजमेंट ऑफर चैलेंजेस, एक्साइटिंग
exciting and creative opportunities for meaningful and fulfilling work. Successful managers receive significant monetary rewards for their efforts. तो मैनेजमेंट इज़ नीडेड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल साइजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे से ये बताया हुआ है, ऑल टाइप्स ऑफ नॉन प्रॉफिट, प्रॉफिट में, ऑल साइजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल हो या लार्ज हो, ऑल ऑर्गेनाइजेशन लेवल, टॉप लेवल, मैनेजमेंट, बॉटम लेवल, हर तरफ आपको ये आपको मैनेजमेंट की मैनेजमेंट नज़र आएगी। ऑर्गेनाइजेशन एरियाज़, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंटिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सब में आपको रिक्वायर्ड होती हैं मैनेजमेंट। तो रिवॉर्ड्स एंड चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ मैनेजर, ये आपने खुद ही से स्टडी करना है कि क्या रिवॉर्ड्स हैं और क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि एक मैनेजर के पास डिफरेंट तरह की स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। इफ़ यू आर नॉट टेक्निकली एक्सपर्ट बट यू मस्ट हैव डेवलप योर ह्यूमन स्किल्स, जिसके अंदर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, योर इफेक्टिवनेस स्किल्स, जहाँ पे अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को मीट करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिवॉर्ड्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस आर मोर देन रिवॉर्ड्स, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर तरह का इन्वायरमेंट होता है और उसके बारे में हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। दीज आर द की टर्म्स टू नोट, ये इनमें से काफ़ी हद तक इसमें कुछ लेक्चर्स में कवर हो गया। नाउ वी विल कंटिन्यू विद, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, फर्स्ट चैप्टर। अब आपके कुछ असाइनमेंट है जो फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैं ज़्यादातर दे दिया करती हूँ, वो मैं आपके साथ अपलोड कर लूँगी, आपको बता दूँगी। दैन यू विल हैव टू फुलफ़िल, उसको आपने करना है, फिलअप करना है और मुझे आपने भेज देना है, जिसके ऊपर मैं आपकी मार्किंग करूँगी क्लास पार्टिसिपेशन के तौर पे। थैंक यू वेरी मच, कीप सेफ, कीप एट स्टे एट होम, थैंक यू।